Every human being has a basic instinct to help each other out. If a hiker gets lost in the mountains, people coordinate a search. If an earthquake levels the city, people all over the world send emergency supplies. This instinct is found in every culture, without exception. At around 4:30 a.m., our satellites detected a storm approaching the Ares 3 mission site on Mars. The storm had escalated to severe, and we had no choice but to abort the mission. But during the evacuation, astronaut Mark Watney was killed. I'm entering this log for the record. This is Mark Watney, and I'm still alive. Obviously. I have no way to contact NASA or my crewmates, but even if I could, it would take 4 years for another manned mission to reach me, and I'm in a hab designed to last 31 days. So, in the face of overwhelming odds, I'm left with only one option. I'm gonna have to science the shit out of this. Okay, let's do the math. I gotta figure out how to grow 4 years worth of food here, on a planet where nothing grows. But if I can't figure out a way to make contact with NASA, none of this matters anyway. Houston, be advised. We've got a video message. It's directed to the whole crew. Play it. Mein Gott. Mark Watney's still alive. Woo! In your face, Neil Armstrong. We left him behind. Let's go get our boy. This is something NASA rejected, so we're talking mutiny. And if we mess up the supply rendezvous, we die. If we mess up the Earth gravity assist, we die. It's space. It doesn't cooperate. I guarantee you that at some point, everything's gonna go south on you. And you're gonna say, this is it. This is how I end. Is it possible that he's still alive? फिल्म की इब्तिदा में दिखाया जाता है कि मरीख मार्स की जमीन पर कुछ साइंसदान उसकी मिट्टी के सैंपल्स ले रहे होते हैं। तभी उनके लिए एक नोटिफिकेशन जारी होता है कि बहुत जल्द यहाँ पर एक तूफान आने वाला है। इन सब लोगों को जल्द ही वापस अपने स्पेसशिप पहुंचना होगा। तमाम साइंसदान अपनी स्पेसशिप पे पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन उनमें से एक साइंसदान जो आखिर में चला आ रहा होता है, उससे कोई भारी चीज टकराती है और वो वहीं पर रह जाता है। स्पेसशिप में मौजूद तमाम साइंसदान उस शख्स से राब्ता करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे राब्ता नहीं हो पाता। तमाम साइंसदान यही ख्याल करते हैं कि मार्क्स अब इस दुनिया में नहीं रहा, लिहाजा वो वहां से चले जाते हैं। फिल्म के अगले मंजर में दिखाया जाता है कि मार्क्स नामी शख्स मरा नहीं, जिंदा है। हाँ, अलबत्ता उसके पेट में एक रॉड घुस जाती है। साइंटिस्ट मार्क्स इंतहाई तकलीफ में दिखाया जाता है। वो बड़ी मुश्किल से चलते हुए उस चैम्बर की जाने बढ़ता है जो उन साइंसदानों के लिए बनाया गया था जो इस मिशन पर काम कर रहे थे। अपने चैम्बर में दाखिल होने के बाद वो उस रॉड को अपने पेट में से निकाल लेता है, लेकिन साथ ही वो ये बात सोचकर भी परेशान होता है कि इसका राब्ता अपने साथियों से कैसे बहाल होगा। वो ये सोचकर परेशान हो जाता है कि स्पेसशिप चले जाने के बाद क्या अब उसे तमाम जिंदगी इसी जगह पर रहना होगा। मार्क्स के इल्म में ये बात थी कि अगला मिशन 4 साल बाद होना है। वो ये भी सोचकर परेशान हो जाता है कि 4 साल का अरसा बहुत ज्यादा होता है और उसके पास जो खाने पीने की अशिया हैं वो नाकाफी हैं। वो भूख और प्यास की वजह से मारा भी जा सकता है, लिहाजा उसे जल्द ही कुछ न कुछ करना होगा। वो दिल ही दिल में सोचता है कि उसे ऐसा जरूर कुछ करना चाहिए ताकि वो इस मुश्किल से छुटकारा पा सके। तभी उसके जहन में ख्याल आता है कि उसके पास कुछ आलू मौजूद हैं कि जिनकी मदद से वो मजीद आलू उगा सकता है। और मरीख पर आने की वजह भी यही थी कि तमाम साइंसदान ये चाहते थे कि मरीख की मिट्टी को काबिल काश्त बनाया जाए। वो कुछ कैलकुलेशन करता हुआ दिखाई देता है। फिर इसके बाद वो बाहर जाता है ताकि मरीख की मिट्टी की मदद से कुछ आलू काश्त किए जा सके। लेकिन फिर उसे अगले चैलेंज का सामना होता है।
مریخ پر پانی بہت کم تھا، بلکہ نہ ہونے کے برابر۔ یہاں پر صرف وہی پانی موجود تھا جو سائنسدان اپنے ساتھ لائے تھے۔ مارکس ایک بوٹانسٹ بھی تھا۔ وہ جانتا تھا کہ پانی کو کیسے پروڈیوس کیا جا سکتا ہے اور کس طرح اس مٹی کو قابل کاشت بنایا جا سکتا ہے۔ لہٰذا وہ ہائیڈروجن اور آکسیجن کو جلا کر پانی بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ ابتدائی طور پر وہ پانی بنانے میں کامیاب ہو جاتا ہے، لیکن چند لمحوں بعد ایک زوردار دھماکہ ہوتا ہے۔ وہ ایک بار پھر کوشش کرتا ہے اور پانی بنانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد مارک اس جگہ پانی پروڈیوس کرتا ہے جہاں پر اس نے آلو کے بیج کاشت کیے ہوتے ہیں۔ کچھ ہی دنوں بعد وہاں سے ننھے پودے برآمد ہونے لگتے ہیں۔ مارک یہ دیکھ کر جذباتی ہو جاتا ہے۔ جینے کی امید اس کے دل میں اور بڑھ جاتی ہے۔ دوسری جانب فلم میں دکھایا جاتا ہے کہ دنیا میں مارک کے مر جانے کا اعلان کر دیا جاتا ہے اور اس کا تعزیتی اجلاس بھی منعقد کر دیا جاتا ہے۔ لیکن تبھی فلم میں ایک چونکا دینے والا موڑ آتا ہے۔ فلم کے اگلے منظر میں ایک لڑکی کو دکھایا جاتا ہے جو مسلسل مریخ پر نظر رکھی ہوئی ہوتی ہے۔ جب وہ مریخ کے کلپ دیکھ رہی ہوتی ہے تو وہ یہ محسوس کرتی ہے کہ پہلے جو سامان ایک جگہ پڑا ہوا تھا اب اس کی جگہ تبدیل ہو چکی ہے، یعنی وہاں پر رہ جانے والا سائنٹسٹ مارک مرا نہیں، زندہ ہے۔ وہ لڑکی فوراً اس بات کی اطلاع اپنے سینئرز کو دیتی ہے اور اس کے سینئرز بھی سمجھ جاتے ہیں کہ سائنٹسٹ مارک ابھی زندہ ہے۔ اس لڑکی کے سینئرز اسے بتاتے ہیں کہ اگر ہم مارک کو بچانے کے لیے مریخ پر چلے بھی جائیں تو وہ اس سے پہلے ہی بھوک سے مر جائے گا، اور یہ بات درست بھی تھی۔ فلم میں آگے دکھایا جاتا ہے کہ دوسری جانب مارک اپنے بچے رہنے کی تقدو میں لگا ہوتا ہے۔ وہ ساتھ میں یہ بھی پلان کر رہا ہوتا ہے کہ 4 سال بعد جس جگہ دوسرا مشن بھیجا جائے گا وہاں تک کیسے پہنچا جائے، کیونکہ وہاں پہنچنے میں تقریباً 50 دن لگ سکتے ہیں۔ لہٰذا ایک ہی جگہ بیٹھے رہنے سے بہتر یہ ہوگا کہ وہ اس جگہ پہنچنے کی کوشش کرے کہ جہاں پر دوسرا مشن بھیجا جائے گا۔ مختلف کیلکولیشن کے بعد اسے پتہ چلتا ہے کہ وہ کار یہاں سے 3200 کلومیٹر دور ہے، اور جو کار اس کے پاس موجود ہے وہ سولر سسٹم کے تحت چلتی ہے اور ایک دن میں لگ بھگ 30 سے 35 کلومیٹر سے زیادہ نہیں چل سکتی۔ لیکن مارک اپنے سفر پر نکل پڑتا ہے کیونکہ یہی اس کے پاس آخری آپشن تھا۔ فلم کے اگلے منظر میں دکھایا جاتا ہے کہ دوسری جانب دنیا میں لوگ یہ بات پلان کر رہے ہوتے ہیں کہ مارک کو کھانا کیسے پہنچایا جائے۔ وہ بتاتے ہیں کہ اس کام کو تقریباً 1 سال لگ سکتا ہے۔ دوسری جانب یہ دکھایا جاتا ہے کہ سیارہ مریخ پر مارک اپنے لیے آلو اگا چکا ہے جو کہ اس کی ضرورت سے کہیں زیادہ تھے۔ مارک دل میں سوچتا ہے کہ وہ آلو کھا کر آخر کب تک زندہ رہ سکتا ہے، اسے کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے۔ یہ سوچ کر وہ اس جگہ پہنچتا ہے جہاں ایک ایسا کیمرہ لگا ہوا ہوتا ہے جو یہاں کی تصویریں دنیا میں بھیج سکتا ہے۔ فلم میں دکھایا جاتا ہے کہ مارک 3 سائن بورڈ لگاتا ہے۔ اس کے پہلے بورڈ پر لکھا ہوتا ہے کین یو سی می، دوسرے پہ یس اور تیسرے پر نو۔ جب زمین پر سائنسدان یہ تصویر دیکھتے ہیں تو کیمرے کا رخ یس کی جانب موڑ دیتے ہیں۔ مارک یہ دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے۔ اب وہ سائنسدان کوڈ ورڈز میں دنیا والوں سے باتیں کرنے لگتا ہے جہاں اس کو یہ بتایا جاتا ہے کہ اس کے لیے کھانا بھیجا جا رہا ہے۔ مارک یہ سب کچھ جان کر بہت خوش ہوتا ہے۔ تبھی وہ زمین پر موجود سائنسدانوں سے پوچھتا ہے میرے وہ ساتھی جو میرے ساتھ آئے تھے وہ اب بھی راستے میں ہوں گے، کیا آپ لوگوں نے انہیں بتایا کہ میں زندہ ہوں؟ زمین پر موجود سائنسدان کہتے ہیں کہ نہیں، ابھی نہیں، لیکن انہیں جلد بتا دیا جائے گا۔ جب مارک کے ساتھی سائنسدانوں کو پتہ چلتا ہے کہ مارک ابھی زندہ ہے تو انہیں بہت برا محسوس ہوتا ہے۔ وہ انتہائی افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ کیوں اسے وہاں پر تنہا چھوڑ آئے۔ فلم کے اگلے منظر میں دکھایا جاتا ہے کہ مارک نے جہاں پر آلو کاشت کیے ہوتے ہیں وہ جگہ ایک دھماکے سے اڑ جاتی ہے۔ مارک انتہائی رنجیدہ ہو جاتا ہے کیونکہ اب اتنے آلو نہیں بچ پائے تھے کہ جو اس کے لیے کافی ہوں۔ مارک یہ سوچ کر پریشان تھا کہ جب تک اس کے پاس کھانا اور پانی پہنچتا وہ مر چکا ہوگا۔ تب اس کے بعد وہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ دن بھر میں جو کھانا وہ 2 وقت کھایا کرتا تھا اب اسے اور بھی کم مقدار میں کھایا کرے گا۔ فلم میں دکھایا جاتا ہے کہ دوسری جانب دنیا میں ناسا سے ایک راکٹ لانچ کرنے کی تیاری کی جاتی ہے کہ جس میں مارک کے لیے کھانا اور اس کی ضروری اشیاء لوڈ کر دی جاتی ہیں، لیکن یہاں پر بھی قسمت ساتھ نہیں دیتی۔ وہ راکٹ لانچ ہونے کے چند لمحوں بعد بلاسٹ ہو جاتا ہے اور اس میں موجود ساری خوراک تباہ ہو جاتی ہے اور اب مارک کے پاس کچھ بھی نہیں پہنچایا جا سکتا تھا۔ یہ سب دیکھ کر وہاں موجود سارے لوگ دکھی ہو جاتے ہیں۔
जब मार्क को ये पता चलता है तो वो भी बहुत डिसअपॉइंट हो जाता है, लेकिन वो नासा को एक मैसेज करता है कि वो हिम्मत हारने वालों में से नहीं है। मैं अपनी आखिरी सांस तक लड़ूंगा और हो सके तो मेरे वालिदैन को बता दीजिएगा कि मैं एक इंतहाई प्रोफेशनल आदमी था। अगर वो इस दौरान मर भी गया तो उसे कोई अफसोस ना होगा क्योंकि वो आखिरी दम तक लड़ा है। फिल्म के अगले मंजर में दिखाया जाता है कि वो चाइना से मदद तलब करते हैं और चाइना इसके लिए तैयार हो जाता है क्योंकि 28 दिन बाद चाइना का एक खलाई जहाज खला में जाने के लिए तैयार होता है। फिल्म में दिखाया जाता है कि वहां पर मौजूद एक शख्स एक मशवरा देता है कि जो जहाज मार्स से वापस जमीन की तरफ आ रहा है उसे वापस मार्स की तरफ भेज दिया जाए और मरीख पर पहले से मौजूद स्पेसशिप पर बैठकर मार्क ऑर्बिट तक आ जाए, फिर वहां से वो लोग उसे ले लेंगे। लेकिन ये एक खतरनाक अमल था जिसमें बकिया साइंसदानों की जानों को भी खतरा था और ये सब कुछ करने में उन्हें मजीद 19 महीने लगते। ये सब जानने के बाद नासा इससे इनकार कर देती है। फिल्म में दूसरी जानिब मरीख का मंजर दिखाया जाता है जहां पर मार्क हिम्मत नहीं हारता और मुख्तलिफ कामों में लगा होता है। नासा में काम करने वाले जब ये देखते हैं कि जो खलाई जहाज वापस जमीन पर आ रहा था वो अब दोबारा मार्स की जानिब मुड़ गया है, नासा वाले ये सब देखकर हैरान होते हैं। असल वजह ये थी कि वो लड़का जिसने नासा वालों को मशवरा दिया था वो खलाई जहाज पर मौजूद साइंसदानों से राब्ता करता है और अपना मशवरा उन्हें देता है और उनसे दरख्वास्त करता है कि वो जाकर मार्क की जान बचाएं। वो लड़का उनसे कहता है कि वो तुम्हारा साथी था, अगर हम यहाँ जमीन से कुछ करते हैं तो उसमें कई साल लग सकते हैं, लेकिन तुम अपने साथी तक सिर्फ चंद महीनों में पहुंच सकते हो। नासा ये सब कुछ जानकर भड़क उठता है, लेकिन चाइना वाले कहते हैं कि हौसला रखिए, जब मार्क वहां पर हिम्मत नहीं हार रहा और ये साथी साइंसदान उसे बचाने जा रहे हैं तो हमें भी सब्र करना चाहिए। चाइना मार्क के साथी साइंसदानों को खुराक और जरूरी चीजें मुहैया कर देता है ताकि वो अपना मिशन जारी रख सकें। जब मार्क को पता चलता है कि उसके साथी साइंसदानों से वापस लेने आ रहे हैं तो वो बहुत खुश होता है, लेकिन ये जानकर थोड़ा सा उसे अफसोस होता है कि उनके साथियों के पास इतना फ्यूल नहीं कि वो मार्स पर उतर सके। लिहाजा उसे ही कुछ करना होगा, उसे ही कुछ ऐसा तैयार करना होगा कि जिससे वो मरीख के ऑर्बिट तक पहुंच सके। वो अपनी स्पेसशिप पर काम करने लगता है। वो स्पेसशिप इतनी भारी होती है कि उसे हल्का करने के लिए उसमें से गैर जरूरी चीजें निकाल देनी पड़ती हैं ताकि वो वजन में हल्की हो जाए और जल्द से जल्द मरीख के ऑर्बिट तक पहुंच जाए। अब खलाई जहाज में बैठकर मार्क अपना सफर शुरू करता है। चूंकि वो खलाई जहाज मुकम्मल तौर पर सही नहीं हुआ होता, लिहाजा मार्क को घुटन महसूस होने लगती है और वो दौरान सफर ही बेहोश हो जाता है। अपने बेहोश हो जाने की वजह से उसका राब्ता तमाम लोगों से मुनक़ता हो जाता है। जमीन और खला में मौजूद तमाम लोग इस सूरत हाल को देखकर परेशान हो जाते हैं, लेकिन जो ही मार्क को दोबारा होश आता है और वो जमीन और अपने साथियों से राब्ता करता है तो तमाम लोग खुश हो जाते हैं। जमीन पर मौजूद बहुत सारे लोग मार्क और उसके साथी साइंसदानों के लिए परेशान थे और उनके लिए दुआएं कर रहे थे, लेकिन मुश्किलें मार्क का पीछा नहीं छोड़ती। यहाँ पर एक और प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है कि जहाज अपनी रफ्तार बनाए नहीं रखता और मार्क ये सोचकर परेशान हो जाता है कि अगर इसकी स्पीड को कंट्रोल नहीं किया गया तो वो अपने बकिया साथी साइंसदानों से नहीं मिल पाएगा। वो खला में मौजूद अपने बकिया साथी साइंसदानों से राब्ता करके कहता है, मैं हिम्मत नहीं हारूंगा और किसी भी तरह इसकी रफ्तार को कंट्रोल कर तुम लोगों तक पहुंच जाऊंगा। वो अपने स्पेसशिप का एक हिस्सा नीचे गिरा देते हैं कि जिसकी वजह से मार्क के स्पेसशिप की रफ्तार कम हो जाती है। रफ्तार कम होने की वजह से ये पॉसिबल था कि वो मार्क तक पहुंच सकते थे। फिल्म के अगले मंजर में दिखाया जाता है कि एक फीमेल कमांडर खला में मूविंग चेयर की बदौलत मार्क्स तक पहुंचने की कोशिश करती है, लेकिन किस्मत एक बार फिर आड़े आ जाती है। वो रस्सी छोटी पड़ जाती है और यूं वो मार्स तक नहीं पहुंच पाती। मार्क ये सूरत हाल देखकर उनसे कहता है कि तुम लोग हिम्मत ना हारो, मैं कुछ न कुछ करता हूँ। वो अपने खलाई सूट में एक सुराख करता है कि जिसमें से निकलने वाले एयर प्रेशर के जरिए वो खला में अपनी सिमत और रफ्तार काबू में करने के काबिल हो जाता है और फिर वो इसी तरह फीमेल कमांडर जो कि उस वक्त कुर्सी पर मौजूद थी उस तक पहुंचने में कामयाब हो जाता है। जब मार्क फीमेल कमांडर के करीब पहुंचता है तो वो उसका हाथ पकड़ने में नाकाम रहता है और आगे निकल जाता है, लेकिन जल्द ही वो फीमेल कमांडर उसकी जानिब रस्सी फेंकती है कि जिसे मार्क पकड़ लेता है।
तब उसके बाद वो स्पेस शिप में दाखिल होने में कामयाब हो जाता है। जमीन पर मौजूद साइंसदान और उसके साथी और दुनिया के तमाम लोग इंतहाई खुशी और मसरत का इजहार करते हैं। बाद में दिखाया जाता है कि वो खलाई जहाज जमीन पर लैंड कर चुका होता है और मार्क नासा में एक हेड मुकर्रर कर दिया जाता है जो लोगों को ये बताता है कि अगर खला में कोई फंस जाए तो वहां पर खुद को कैसे रेस्क्यू किया जा सकता है, और सबसे बढ़कर ये कि किसी भी हाल में हिम्मत नहीं हारना चाहिए। और इसके साथ ही मूवी का इख्तिताम हो जाता है।